Welcome to my YouTube channel. In the previous lecture, we have seen the what is union of a set and what is intersection of a set, and we have seen few examples of union and intersection of a set. Now we'll see some more example of union and intersection, and we'll see some properties of union and intersection. So let us start with the first example. If A is equals to X, where X is a natural numbers, B is equals to X, where X is an even natural numbers, C is equals to X, where X is an odd natural numbers, and D where X is a prime number, X is a prime number, then find number 1 A intersection B, number 2 A intersection C, number 3 A intersection D, in number 4 B intersection D, in number 5 C intersection D. So first we'll write here A is equals to X, where X is a natural numbers. So we'll convert into a roster form first. हम क्या करेंगे, पहले हम इसको roster form में convert कर देंगे. So we'll write X is a natural number, so we know that it is 1 2 3 4 5 up to infinite. Then we'll write B. X is an even natural number. X is an even natural numbers. So we'll write 2 4 6 8 10 up to infinite. Then we'll write C is equals to X, where X is an odd natural numbers, is equals to 1 3 5 7 up to infinite, and we have given D is X, where X is a prime number. X is a prime numbers. So in prime numbers we can write 2
3, 5, 7, 11 अप टू इनफाइनाइट। प्राइम नंबर हम किसे बोलेंगे स्टूडेंट्स? प्राइम नंबर मीन्स ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, हम उस नंबर को प्राइम नंबर बोलेंगे। Okay, now we'll find the answer one by one. The first one is A intersection B. So first we'll write directly, we'll write the answer A intersection B. Okay, then here you can see that A is 1 2 3 4 5 up to infinite, B is 2 4 6 8 10 up to infinite. So दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से है? 2 4 6 8, यस दोनों में कॉमन है। सो हम आंसर में लिखेंगे 2 4 6 8 10 अप टू इनफाइनाइट। सो दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। नाउ विल मूव टू द सेकेंड वन। द सेकेंड वन इज A intersection C. So we'll write A intersection C. A is natural number and C is the set of odd natural numbers. So naturally दोनों में common क्या रहेगा? Odd natural number. So answer would be 1 3 5 7 9 up to infinite. Number 3, A intersection D. A और D का intersection. So A is a set of natural number. Can we say that B is a also subset of A, C is also subset of A and D is also subset of A. So naturally जो आंसर है वो छोटा सेट जो रहेगा वो ही आंसर के अंदर आएगा। तो यहाँ पे आप देखो A इंटरसेक्शन D, सो इसके अंदर है 2 3 5 7 11 और इसके अंदर है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। तो आप देख सकते हो कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 11 कॉमन है। तो आंसर के अंदर हम लिखेंगे 2 3 5 7 11 up to infinite. So this is your third answer. Now please do this 2 example by yourself. Fourth one is B intersection D and the fifth one is C intersection D. आपको B और D का इंटरसेक्शन निकालना है और C और D का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है। अगर कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो आप नल सेट लिख सकते हो। ओके, नाउ we'll see some properties of union of a set. We'll see the properties of यूनियन ऑफ अ सेट। यूनियन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, A यूनियन B इज ऑलवेज इक्वल्स टू B यूनियन A। A और B का आप यूनियन निकालो और B और A का यूनियन निकालो, दोनों आंसर हमेशा सेम रहेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नंबर 2, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C। अगर आप A यूनियन B का यूनियन निकालो, फिर C के साथ उसका यूनियन करो और पहले B यूनियन C निकालो, फिर उसका A के साथ यूनियन करो, तो दोनों के आंसर सेम रहेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को नाम दिया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर 3 हम देखेंगे A यूनियन 5 इज इक्वल्स टू A। अगर आप कोई भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन निकालोगे तो ऑब्वियसली आंसर है वो A ही आएगा।
तो इस प्रॉपर्टी को नाम दिया है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ आइडेंटिटी। नाउ नंबर 4, हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे। ए के साथ अगर आप ए का ही यूनियन निकालो तो नेचुरली आंसर ए ही आएगा, तो इसको बोलते हैं आइडिम्पोर्टेंट लॉ। ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए इज कॉल्ड आइडिम्पोर्टेंट लॉ। ओके, नंबर 5, अगर ए का आप U के साथ यूनियन निकालो, U मीन्स यूनिवर्सल सेट, तो सबसे बड़ा सेट कौन सा है? यूनिवर्सल सेट। तो नेचुरली A और यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकालोगे तो आंसर हमको मिलेगा U। देन दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ U, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ U। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द properties of the union of a set. Okay, now we'll see the properties of intersection. So we'll write properties of intersection। पहले हमने यूनियन की प्रॉपर्टीज देखी, नाउ विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, नंबर 1, सेम एज द इंटरसेक्शन यूनियन प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। ओके, then we'll see the next property, number 2, A intersection B intersection C is equals to A intersection B intersection C. This property is called associative property. Then we'll see number 1, number 3, A intersection phi और 5 इंटरसेक्शन ए। हम ए का 5 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, उसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ए का 5 के साथ इंटरसेक्शन लो तो दोनों के कॉमन एलिमेंट, लेकिन 5 में तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो नेचुरली इसका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस। ए इंटरसेक्शन 5 is equals to 5 intersection A is equals to A. This is called law of 5. Law of 5. And number 4, A का A के साथ इंटरसेक्शन निकालो तो ऑलवेज आंसर तो A ही आएगा। सो दिस इज कॉल्ड आइडिम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, आइडिम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी और आइडिम्पोर्टेंट लॉ, आप कुछ भी इसको बोल सकते हो। ओके, एंड नंबर 5, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इंटरसेक्शन और यूनियन का। तो हम आंसर में लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए का आपको बी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, फिर यहाँ पे यूनियन की साइन करनी है, फिर ए का आपको सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन और ए का सी के साथ इंटरसेक्शन। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। चेंज करो ऑर्डर, यूनियन में ऑर्डर चेंज करो तो आंसर तो वो ही रहता है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव है। हमने देखा ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो इसको
ए बोलो, इसको बी बोलो, तो ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, दोनों के आंसर तो सेम ही रहेंगे. सो हियर वी हैव सीन द प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन and the properties of the intersection. Right, this is very easy, and you can take any example by taking any elements in the set A, B or C. This property always be satisfied. Right, so this is how you can see the properties of union and properties of intersection. Okay, thank you very much.